السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ بلعم بن باعوت یہ ایک ایسا شخص تھا۔ اس شخص نے اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد زندگی گزارا کرتا تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب دعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سی گراں قدر ہدیے اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باعورہ پر ہرس اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم باعورہ، تم کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو! کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھے کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ عثمان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں، میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد اور غارت ہو گئی۔ میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار، غضب و جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔
मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ, तुम लोग ऐसा करो तो शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी जना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचे बिलम बिन बाउरा की कौम ने उसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दो शीजाओं को बनाओ संगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न जमाल पर फरेफ्ता हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा कि ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं। आपने फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फौरन उसको अपने से अलग कर दे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अजाब से डर। मगर उस रईस पर गलबा शऊद का ऐसा जबरदस्त भूत सवार हो गया था कि वो अपने नबी के फरमान को ठकरा कर उस औरत को अपने खेमे में ले गया और जनाकारी में मशगूल हो गया। उस गुनाह की नहूसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन यानी कि प्लेग की वबा फैल गई और घंटे बाद में 70,000 आदमी मार गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकाम नामराद वापस चला गया, जिसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कल्बे मुबारक पर बहुत ही सदमा गुजरा। बिलम बिन बाउरा पहाड़ से उतरकर मरदूद बारगाह इलाही हो गया। आखिरी दम तक उसकी जबान उसके सीने पर लटकती रही और वो बेईमान होकर मर गया। इस वाक़े को कुरान करीम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया, वतलू अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलखा मिनहा फअतबअहु शैतानु फकान मिनल गावीन वलौ शीना लरफानाहु बिहा वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दि वत्तबा हवाह फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फक़्सू सिल कससा लअल्लहुम यतफक्करून। और ए महबूब, उन्हें उसका अहवाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी तो वो उनसे साफ निकल गया, तो शैतान उसके पीछे लगा तो गुमराहों में हो गया। और हम चाहते तो आयतों के सबब उसे उठा लेते, मगर वो तो ज़मीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ, तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तो उस पर हमला करे तो ज़बान निकाले और छोड़ दे तो ज़बान निकाले। ये हाल है उनका जिन्होंने हमारी आयतें जुटलाई। तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वो ध्यान करें। बिलम बिन बाउरा क्यों जलील हुआ? रवायत है कि बाज़ अंबिया इकराम ने खुदा ताला से दरियाफ्त किया, तो उन्हें बिलम बिन बावरा को इतनी नेमतें अता फरमा कर फिर इसको क्यों इस जिल्लत में गिरा दिया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसने मेरी नेमतों का कभी शुक्र अदा नहीं किया। अगर वो शुक्र गुजार होता तो मैं उसकी करामतों का स्लिप करके उसको दोनों जहान में इस तरह जलीलो ख़वार और गायबो खासर ना करता। बिलम बिन बाउरा की इस सरगुज़श्त से चंद असबाब के हदायत मिलते हैं। इससे उन आलमों और लीडरों को सबक हासिल करना चाहिए जो मालदारों या हुकूमतों से रकमें लेकर खिलाफ शरीयत बातें करते हैं और जानबूझकर अपने दीनों ईमान का सौदा करते हैं। देख लो बिलम बिन बाउरा क्या था और क्या हो गया। ये क्यों हुआ? इसलिए और सिर्फ इसलिए कि वो मालो दौलत के लालच में गिरफ्तार हो गया और दानिस्ता अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नबी पर बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। तो उसका इस पर यह वबाल पड़ा कि दुनिया और आखिरत में मलऊन होकर इस तरह मरदूद मतरूर हो गया कि वो उम्र भर कुत्ते की तरह लटकती हुई ज़बान लिए फिरा और आखिरत में जहन्नम
जहन्नम की भड़कती और शोला बार आग का ईंधन बन गया। लिहाजा हर मुसलमान खुसूसन उलमा मशाइखों को माल और दौलत के हिरस और लालच के जाल से हमेशा परहेज करना चाहिए और हरगिज़ कभी भी माल की तमा में दीन के अंदर मुदाहिश नहीं करनी चाहिए, वरना खूब समझ लो कि कहरे अलाही अज़्ज़ा व जल की तलवार लटक रही है। इस सानहे से आम मुसलमान भी ये सबक सीखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जिसमें मलाइका और मोमिनीन थे, जाहिर है कि उस लश्कर के नाकाम होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि ये ऐसा रूहानी और मलकूती लश्कर था कि उनके घोड़े के टाप से पहाड़ लर्जा बरांदम हो जाते, मगर सिर्फ एक बदनसीब के गुनाह के सबब ऐसी नहूसत फैल गई कि मलाइका लश्कर से अलग हो गए और ताऊन के अजाब ने पूरे लश्कर में ऐसी अबतरी फैला दी कि पूरा लश्कर बिखर गया और ये फौज जफर मौज नाकाम नामुराद होकर पसपा हो गई। इसलिए मुसलमानों को लाजिम है कि अगर वो कुफार के मुकाबला में मुजफ्फर मंसूर और फतह याब होना चाहते हैं तो हर वक्त गुनाहों और बदकारियों की नहूसतों से बचते रहें, वरना फरिश्तों की मदद खत्म हो जाएगी और मुसलमानों का रोब कुफार के दिलों से निकल जाएगा और मुसलमानों को ना सिर्फ नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा बल्कि उनकी अस्करी ताकत ही फना हो जाएगी और पूरी कौम सफाई हस्ती से हरफे गलत की तरह मिट जाएगी। नौज़ बिल्लाह मिन्हु। अलूमो मारफ का ना खत्म होने वाला खजाना कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो जलील और कदर और अजीम शान किताब है जिसमें एक तरफ हलाल और हराम के अहकाम, इबरतों और नसीहतों के अक़वाल, अंबिया कराम और गुज़श्ता उम्मतों के वाक़यात, अहवाल, जन्नत और दोज़ख के हालात मज़कूर हैं और दूसरी तरफ उसके बातन की गहराइयों में अलूम व मारफ के खजानों के बेशुमार ऐसे समुंदर मौजें मार रहे हैं जो क़यामत तक कभी ख़त्म नहीं हो सकते। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की इस अजीम शान जामियत का बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, कुरानी मज़ामीन का अहाता करके कभी उलमा आसूदा नहीं होंगे और बार बार पढ़ने से कुरान पुराना नहीं होगा और कुरान के अजीबो गरीब मज़ामीन कभी ख़त्म नहीं होंगे। चुनाचे हज़रत सैयदना ख्वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला इतलाने अला मानी सूरतुल फातिहा फज़हरे मिनहा मियातन अल्फी इल्मिन व अरबाऊना अल्फी इल्मी व तिस्आमियाती व तिस्ऊना इल्मा। बेशक अल्लाह ताला ने मुझे सूरत फातिहा के मायने पर आगाह फरमाया तो उनमें से 1,40,999 अलूम मुझ पर मुनकशिफ हुए। इसी तरह इमाम शेरानी अपनी किताब मिज़ान में तहरीर फरमाते हैं जिसका ये तर्जुमा है, मेरे भाई अफजलुद्दीन ने सूरत फातिहा से 2,47,999 अलूम निकाले हैं। इन रवायतों से अच्छी तरह वाज़ेह होता है कि कुरान पाक अगरचे ज़ाहिर में 30 पारों का मजमुआ है, लेकिन इसका बातन करोड़ों बल्कि अरबों अलूम मारफ का ऐसा खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। किसी आरिफ बिल्लाह का मशहूर शेर है, जमीउल इल्मी फिल कुरानी लाकिन तकासरा अन्हु अफहामुर रिजाली, यानी तमाम अलूम कुरान में मौजूद हैं लेकिन लोगों की अक्लें उनके समझने से कासर कोताही है। अलहासिल कुरान मजीद में सिर्फ अलूम व मारिफ ही का बयान नहीं बल्कि हकीकत ये है कि कुरान मजीद में पूरी कायनात और सारे आलम की हर चीज़ का वाज़िया और रोशन तफसीली बयान है, यानी आसमान की एक तारे, समुंदर के एक एक कतरे,
सब्जा हाय ज़मीन के एक एक तिनके, रेगिस्तान के एक एक ज़र्रे, दरख्तों के एक एक पत्ते, अर्शो कुर्सी के एक एक गोशे, आलम कायनात के एक एक कोने, माजी का हर वाक़या हाल का हर मामला, मुस्तकबिल का हर हादसा कुरान मजीद में नहायत वजाहत के साथ तफसील बयान किया गया है। चनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, मा फर्रतना फिल किताबे मिन शै, हमने इस किताब में कुछ उठा ना रखा, लेकिन वाज़िह रहे कि कुरान की ये अजाजी शान हमारे तुम्हारे और आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि कुरान की इस अजाजी शान का कामल ज़हूर तो सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महसूस है और सिर्फ आप ही का ये मौजज़ा है कि आपने कुरान मजीद के तमाम मज़ामीन व मानी को तफसीली तौर पर जान लिया और पूरा कुरान नाज़िल हो जाने के बाद कायनात आलम की कोई शय, माजी और हाल और मुस्तकबिल का कोई वाक़या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पोशीदा नहीं रहा, और आपने हर गैब व शहादत को तफसीली तौर पर जान लिया, क्योंकि खुदा बंदे को दूस का अरशाद है, व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शैइन, और हमने तुम पर कुरान उतारा के हर चीज़ का रोशन बयान है। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बाज़ औलिया कराम और उलमाए उज़्ज़ाम को भी बक़दरे ज़रफ़ उनके बातनी अलूम व मुआरफ़ से हिस्सा मिला है, जिनमें से कुछ किताबों के लाखों सफ़हात पर परस्तारों की तरह चमक रहे हैं और कुछ सीनों के संदूक और दिलों की तिजोरियों में अब तक मुकफल ही रह गए हैं, जो आइंदा इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक सफ़हात करतास पर जलवाए रेज होते रहेंगे। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस गैबी खबर वला यनक़दी अजाइबाहु का वक्तन फ़वक्तन ज़हूर होता रहेगा, और उम्मत मुसलमान इनके फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ व माला माल होते ही रहेगी। बहरहाल ये यकीन ईमान रखना चाहिए कि हमने अजाइबुल कुरान और गराइबुल कुरान में जो कुरान के चंद अजीब व गरीब मज़ामीन का एक मुख्तसर मजमूआ तहरीर किया है, और हमसे पहले बहुत से उलमाए कराम ने मज़ामीन कुरान पर हज़ारों किताबें और लाखों सफ़हात तहरीर फरमाए हैं। कुरान मजीद के अलूम व मुआरिफ के सामने इन सब तहरीरों की वो निस्बत भी हासिल नहीं जो एक कतरा को दुनिया भर के समुद्रों से और एक ज़र्रा को तमाम रोए ज़मीन से हासिल हो, क्योंकि कुरान मजीद तो अलूम व मुआरिफ का वो खजाना है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, बल्कि क़यामत तक उलमाए कराम इस बहरे नापैद किनारे से हमेशा अजीब व गरीब मज़ामीन के मोती निकालते ही रहेंगे और हज़ारों लाखों किताबों के दफ्तर तैयार होते ही रहेंगे। कुरान मजीद के चंद मज़ामीन पर दो मुख्तसर मजमूए लिख कर मैं इनसे उलमाए कराम की जूतियों के सफ़ में जगह पा गया, जिन्होंने अपने नोके कलम से कुरानी आयात के ऐसे ऐसे दरशहवार और गोहर आबदार सफ़हात करतास पर बखेर दिए, जिनकी चमक दमक से मोमिनीन के ईमानों और फ़ान में ऐसी ताबानियों ताबंदगी पैदा हो गई जो क़यामत तक रोशन रहेगी।